This movie is encoded by Dr. Star. My Bethany, how could she live with this guilt? His facial mutilation broke her soul, and it wasn't long till she was gone, fled to the woods. She couldn't take the pain anymore. I tried to stop her, but it was too late. Again? No. Kathy, what did I say about phones? I only bought it for emergencies. I have an emergency phone. Put it away.
I'm having that later. You're taking this phone thing way too far, Wesley. They increase stress. Well, they're dirtier than a toilet seat. They have E. coli. They don't have E. coli. They emit radiation that gives you headaches and brain tumours. I mean, do you want a brain tumour, Catherine? No, Wesley. Good. I don't want to hear a beep or a buzz this whole weekend. I just want fresh country air and beautiful scenery and to be away from traffic and shops and fucking television. And to spend time with the family? If they ever show up. Mum! Oh, Jessica, sweetheart, how are you? Curtis, hi. Hi. Hey, Wesley. You're 6 minutes late. Lovely to see this handsome young chap again. How are you, Curtis? I'm very well, thanks, Kathy. Oh, good gracious, do you need a hand with all that stuff? Wesley can help. You do know it's just one weekend, Jessica. What the bloody hell have you got in there? We're fine, thanks. Just chuck it in the back wherever there's space. Don't chuck it. Oh, say hello to your brothers. Hey, Jessie! Hi, Sam. Hi. You remember Curtis? Toby, say hi to your sister. Hi to your sister. Hi, Toby. I see you haven't changed. Dick. Thought uni might have made you grow up a bit. It was going great till I had to come back for this shit. Toby, no S word, please. Not around your brother. Toby, can Curtis maybe sit there? Doesn't like facing sideways. I get car sick. I shotgunned it. I've exited. Well, I'd apologise, but I'm not allowed to use the S word. Everybody in back there? Yeah. Yes. Seatbelts on? No, because there aren't any. I've got snacks in the shelf above for the journey. Fruit, water. Can we just go? Yes, Wesley dear. Toby! What? What are you letting him watch? I'm not letting him watch anything. He doesn't have to look. Well, alright, what are you watching then? Sewage Baby Massacre. You really think that's appropriate for a 10-year-old? I've been watching this stuff since I was like 5. And look how great you turned out. Oh, friggin' hell, Sam. It smells like you've had a Sewage Baby Massacre in your pants. If it smells, it dealt it. Seriously though, someone's sharted. Shut up, Toby, turn it off. Sam likes it. He's learning self-defense. And you swear words. And how to mash someone's skull in with a sledgehammer. No what? Get off! I was watching that! Toby, you can't let him watch that. Stop being such a pussy little bitch. Toby, watch your language, please. Did you just call me a little bitch? I called you a pussy little bitch. Please stop using that word. What, bitch? The P word. Pussy is not a swear word. That's all it's ever been to you. Oh, fuck off. Toby, that's enough. I will not have swearing on this trip. For heaven's sake, there's no need. Wesley swears all the time. Yeah, well, I'm an adult. I can do and say what the fuck I like. So, I'm 18. Well, then perhaps you can stop behaving like it. What's pussy? It's a rude word for a cat. I thought it meant a vagina. Why did you let them bring that video thing? It's a long trip. They get bored. Well, I'm bored of hearing them arguing over it. Why can't they just talk? That's what I did when I was a kid.
Do you know Sam's going to end up turning out like Toby? What? Socially retarded. Don't say that, Wesley. You're wrong. He's just got onto a very desirable course. My money's got him onto a desirable course, you mean? I think we might be lost. Huh? This road, it's not on the map. Catherine, please, I know where we are. Would it really do any harm to stop someone and ask for directions? We're in the middle of nowhere, Kathy. There's no one to ask. Do you know what a tom-tom is? It was invented for this reason. Isn't that what you and little girls wear when you're practicing ballet in front of the bedroom mirror? I'm sorry, who invited Cuntis on this trip? Anyone? Toby, don't be a shit. S-word! What did you call me? Cuntis. Well, that's your name, isn't it? Cuntis? Mum, how much further? I'm not sure, love. We're lost. Oh, here. Pull over and ask. Oh, no, Kathy. You never stop to speak to the creepy old guy by the side of the road. Oh, I'll talk to him, Wesley. I said no. Just stop for 1 second. Kathy, do you want to be raped and mutilated? Wesley! Excuse me, hello there. We're a little lost. We were wondering if you could help us. You fellas here to be my side, huh? Oh, that's kind, but no thanks. We're driving. I makes it a good and tasty, mind. Done it all myself down here on our farm. Grown me own apples and all. Oh, that's lovely. Yeah. I pressed it in the presser, boiled them up. I collected the boys from down Dirty River. We don't want cider. We're not interested. We're just looking for the old Hanson farm. Do you know it? You ain't here to drink my cider? No, I'm afraid not. Oh, that's all right. I'll make you some lemonade. You like lemonade? I've got a little old lemonade tree round the back of them hay bales where they fell pussy's been playing. Picked the lemonades myself, didn't I? Do you make it look and smell like piss intentionally, or does that happen by accident? We have a fridge with plenty of food and drink to last the whole weekend. If you could just point us in the direction of that farm. The Hanson farm? I knows it. Just down the hill there. Follow the road round. And you can't miss the old show. Thank you. That your family back there? This is my wife, Kathy, and her family. That your little boy back there? It's my stepson, Sam. Hi, Sammy. Sure your cute little boy don't want some of my lemonade? I can make it for him. I make it proper good and tasty like. Oh, Wesley, just drive. Oh. Oh, smell that fresh country air. Smells like cow shit. Oh, my arse is numb. Hey, my lungs. If killed you to just buy some cider. Right, nobody come round back and taking a piss. Probably only gets like one customer a day. Toby, there's a toilet inside. One a week. It's very pretty here, Wesley. Well, at least somebody appreciates the countryside. Right, ladies, your job is to pitch the tent right over there.
Well, us men head out and get some wood for a fire. Come on, Daniels, you're coming with me. Aren't you going to wait for Toby? I said us men! Sam, can't you leave me alone while I piss? Sam. Sam. What are you doing? Look, What is that? finders keepers. Oh, well, don't touch old shit. Could be possessed. Possessed? Yeah, you know, like that old video I made you watch. Night of the Satanic Exorcism. Made you watch it when you were 4. Yeah, thanks for that. You're welcome. Let's go explore, but I don't want that thing near me. Okay. It's good to have you here with us, Jess. We don't see enough of you or Kurt. We just don't get the time, Mum. That's life. Everybody's money rich and time poor. Yeah, well, Kurt and I are time poor and money poor. You know we'd help you if we could, Jess. Oh, no, Mum, that's not what I was implying. Since I stopped helping you out with money, I barely hear from you. Is that all you need me for? Mum, don't be so ridiculous. You know your father and I met in the city way back when. Well, prices have gone up since then. I mean, Kurt and I, we barely make rent, and we basically live in a cellar. Well, it's hard when you're young, but, well, it gets a bit easier. Mum, I have been living out on my overdraft for 3 years. Whereas you have what? 2 houses and 3 cars? Toby and Sam, they're going to need to live at home with you till they're at least 30. I don't think Wesley would like that. I don't think Wesley likes much of anything. He may seem like a grumpy old man, but actually he's very kind-hearted. He's done a lot of good for us. Mum, maybe you should just stay in the motorhome. You can, but Wesley really wants to camp. That's what we came all this way for. Whoa, 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 what the fuck is that? It's a pop-up tent. Where's my tent, Kathy? The one I've had since I was a kid. It was damp and it was smelly. Who asked you? I'm sorry, Wesley. It was just really tricky. This one's so much easier to put up. Oh, tricky for a useless old baggage, maybe. Perhaps you should have left it to the men. Kind-hearted, you say? He just has a very specific idea of how he wants this weekend to be. Yeah, a living hell for us all. He just wants it to be perfect. For us. Oh, good fire, Wesley. Oh, don't thank me. Thank Mr. Daniels, he got it going. And he gets the first cut of meat. Oh, no. Actually, Wesley, I don't eat meat. Oh no, you got to try this. I'll cook it rare and bloody. It'll be the best meat you've ever tasted. Better than that dog shit they sell in the supermarkets. No, this is proper food. Man's food. We're vegan, Wesley. What? Vegan. Well, from Star Trek? It means vegetarian. No, Mum, it means no animal products. No meat, no dairy. Well, what the bloody hell do you expect to eat then? All kinds of things. Fruit, vegetables, soy products, special vegan things. Isn't that stuff a bit expensive for you? Oh, Mum, it's a choice we've made. You sure you don't want me to cook you up some grass? There's plenty of grass. Oh, how about some leaves? Wesley. Well, that's vegan, isn't it? It's all well and good making fun of us, but there are benefits to our vegan diet. Oh, benefits. Yeah. What benefits? Do you shit flowers? When you've got diabetes, heart disease, and a fat belly, you won't be mocking us. What? I'm just kidding. Perhaps you should just go and get the food bag. No, it's all right, Jess. I'll get it. You two keep the fire going. It's in the brown paper bag by the fridge. Yeah, of course it is.
What did I say about phones? Hey, that's mine. Mum? I specifically said I didn't want phones, games, computers, all your electrical shit on this trip. Give it back. I didn't come all the way out here to have your bullshit disturbing me. You fucking arsehole! Toby! You're going to let him call me an arsehole? An arsehole that pays for you to go to university? See, this is the thanks I get. Do you know what a spoilt brat you are? Fuck you! Get your fucking hands off of me! Toby! That's unacceptable. Apologise to Wesley. Now, let him go, Kathy. Why'd you even bother? Toby! Toby! Wait! Stop! Go away, Jess. But we'll find your phone in the morning. I'm not sitting out there with him. Oh, great. So you're going to leave me out here with him? You're not going to convince him to give you any money, you know. You're wasting your time. What? Jess, give up the act. I know why you came back this weekend. You want money from Mum and Wesley. Same reason you always come back. Toby. It's fine. I don't care. What are parents for other than pissing you off and giving you money? You don't know how lucky you are. Look, maybe I don't appreciate their money. Uni is a con. And I'm probably going to come up with loads of debt at the end of it anyway. Look how you're struggling. Sometimes I don't even know who I'm doing this degree for. Me or for them. Something for Mum to brag to all her friends about. You're doing it for yourself, you dumbass. And you should really make the most of it, because before you know it, you're going to be stuck in the same roundabout of working and paying bills. You've got Kurt, though. I've had a crush on him since you were in year 8. I thought you didn't like Kurt. No, that's me just dicking around. He's a nice guy. I think he's good for you. Good. Because I really like him. Even if it does feel like you're going down a dead end, at least he's there with you. Maybe that's what's important. Look, just don't lock yourself away, okay? Come and join the rest of us. I'm gonna watch a movie. You watch too many movies. Jess, don't depend on Mum and Wesley. I took those university fees and ran. Put them at the back of your mind and take control of the life you want. That's what growing up's all about. How? So, glad you came. To the middle of nowhere with your fucked up family. Hey, and my family, they're alright really. I know, I'm joking. They're bearable. So are you? Glad you came. Of course, I get to spend the weekend with you. I hope my mum's alright out there. She's got Wesley to look after her, to keep her warm in that sleeping bag. Oh, gross. Maybe we should have got a tent too. No, thank you. We'd have more privacy then. We could do whatever we want. My brother's right there. They can't hear. Kurt. Curtis. Play with your rude cat. No. I can hear everything you're doing, you know. It's not okay. Just put a pillow over your head, Toby. Fine. But if I throw up, it's going over your bed. Did you speak to your mum? Brought it up, but she wasn't much help. Why not? You told her about the flat, right? No, I didn't. Jess, what else are we going to do? We've got less than a month. I just didn't know how to bring up with them. Unless you want to move into Toby's old room, you'll have to find a way. There's someone outside!
outside in the window. What? There's a face in the window. There's no one there now, Sam. Oh, Sam, it was just a silly campfire story. No, this was real. There's someone outside. Does this have anything to do with the toy I left in your bed? It's just a toy, Sam. Well, that isn't a toy. It's the creepy Spider-Man. I guess it is just us and him out here. I want to sleep with Mum. Really? You want to go out there and let old creepy face catch you and turn your blood into cider? Not helping, arsehole. Look, Sam, let them be by themselves. They just want a night together alone, okay? Yeah. You don't want to repeat of the Valentine's Day incident. Remember the nightmares that gave you? You can stay with me, all right? Okay. But there's no room, Jess. You can sleep in his bed. Oh, thank you, God. We were just... Curtis. Fine. Fucking hell. Jesus Christ. What are you doing out here, Kurt? Same as you by the looks of it. Sneaky cigarette before bed. Oh no, this is a Casano Corona cigar. Not a cigarette. You don't tell Catherine. The doctors told me I had to quit. Won't tell anyone if you don't. Yeah, whatever. Catherine! Catherine! What the bloody hell did you do? No, Jess! No! You're fine! You're fine! Jess, wait! What is it? Stay inside, Sam. What's happened to Mum? Help me! Go back to the cover! Help me get out of the way! Careful! Careful! What happened? I don't know! The tent just went up in flames. How does the tent just go up in flames? Oh, Kurt was smoking. The petrol tank must have leaked onto the ground. It was an accident. This wasn't an accident. Toby! Someone out there's trying to kill us. Oh, who's got a phone? We need to call an ambulance. There's one over here. Who the fuck's taken my phone? It was in there specifically for emergencies. Toby. I haven't touched your fucking phone. Toby! Just somebody's been in here. Whoever Sam saw in the window, they've been through our things. Enough of this bullshit. We'll drive to the nearest hospital. Kurt, get the map. Jess, I swear something's going on out here. Go! What are you waiting for? Fucking thing won't start! Just go! Right! Shut your traps, you lot, and listen to me. Jess, wrap your mum in a blanket, keep her warm. There's a first aid kit in that box up there. Put bandages on her burns. Do the best you can. Kurt and Toby, you're going to carry her. We're going to go back to that farm, wherever it is. It's the nearest place. But what if We can use their phone. We'll get an ambulance out here. Everything will be fine.
हेलो। हेलो। मुझे नहीं लगता है ये किसी का घर है, ये तो पूरा खंडहर है। मैं आगे जाकर चेक करता हूँ, यहाँ फोन होना ही चाहिए। रुको, वो देखो। हाय, मैं वेस्ली वॉलेस हूँ, ये मेरा परिवार है। वेस्ली, आप पीछे हो जाइए। हम कोई परेशानी नहीं चाहते। मेरी बीवी कैथी घायल हो गई, हमें मदद की जरूरत है। हमें बस फोन चाहिए एम्बुलेंस की। नहीं मिलेगा, सॉरी। हाँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, हम परेशानी नहीं चाहते। मैं भी नहीं चाहता ऑफिसर। प्लीज, क्या हम जा सकते हैं? तो फिर आप गलत फार्म पर आए हैं। मुझे मत मारो। मूर्ख लड़की, ठीक है, गोली नहीं मारूंगा। छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मत करो ऐसा। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, नहीं, मॉम, नहीं, छोड़ दो। सैमी को अकेला छोड़ो। मैंने कहा लड़के को अकेला छोड़ दो। उन सबको छोड़ दो। जब हाथ छोड़ दिए जाएं तो कोई गलत विचार मत करना। पिंजरे के दरवाजे में बिजली का करंट है।
अपने हाथों को तार से दूर रखना। तो क्या आप एक डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे मिस्टर वॉलिस? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये हैंसन फार्म की कहानी है। कई दिलचस्प कहानियों की तरह ये एक ट्रेजेडी से शुरू हुई है, जिसमें मेरी बेटी की मृत्यु हुई। वो बहुत दर्द से गुजरी। बेथनी, मैं बहुत प्यार करता था उससे, दिल से प्यार करता था। वो हमेशा मेरे साथ थी जब कभी उसकी जरूरत थी। नेचुरली ये काम करने वाले अपराधियों को भुगतना तो पड़ेगा, और दया तो उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अब टूट चुका हूं। हैंसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? बेटी, लड़कों को बचाओ, लड़कों को बचाओ। नहीं, मॉम, चले जाओ यहाँ से। बेटा, चलो चलो, तुम जाओ। लेट्स गो। जितनी तेजी से चलो, दौड़ पापा। सकते हो दौड़ो। चलो। अपने गांव पहुंचो। नो जाओ। पापा, प्लीज चलो। भागो। नहीं, ये परिवार अभिशप्त है बेटी। उन्होंने बेथानी हैंसन के खून में एक मौत की सजा लिखी। इसीलिए इतनी नफरत करता हूं मैं। इस असहनीय यातना को देखकर मुझे कम दुख होता है। वो ऐसा नहीं चाहते थे। आपके बारे में मैं बुरी तरह से बात की। वो आप पे गर्व करना चाहते थे। उन लड़कों की जो अपने ही पिता की इसके लिए निंदा करते हैं, पीड़ित, और उनकी माँ को मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपने प्रतिशोध के अलावा सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ। और मैं अपने अंतिम सुख के लिए सब कुछ करूंगा। उसे और उसके बेटे को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद ही चैन से बैठूंगा। पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। छोड़ो। तुमने क्या किया? मेरे लड़के के साथ क्या किया है तुमने?
क्या किया है बताओ मुझे। तो समझे, इस भयानक जेल में अटकने वाली तुम्हारी ये पहली फैमिली नहीं है। बहुतों को ये झेलना पड़ा है। जितनी जल्दी अपनी मृत्यु स्वीकार करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। लड़के को ले आओ। नहीं, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। वेस्ली, आपको पता होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में क्या करें। उसने ऐसा कुछ कहा क्या? पर हमें बंधक बनाया जा रहा है। इन लोगों को भड़काने के लिए हमारे पास क्या है? वो सारे सन की हैं और उस परिवार की सनक की वजह से उसने हमें भी कैद कर लिया। इसलिए मैं इनसे नफरत करता हूँ। उन्हें दोष मत दो, इसमें किसी की गलती नहीं है। पता कैसे चला कि हम कौन हैं? यहाँ सालों तक बंद रह सकते हैं। वो हमें इन पिंजरों में कैद करके जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये लड़के सैम और कर्ट यहाँ हैं। इन्हें इनकी शक्लें पसंद नहीं है, इनके चेहरे का रंग पसंद नहीं है। तुमने वो मुखौटा देखा जो उस गरीब आदमी ने पहन रखा था? जब तक हम इन पिंजरों में फंसे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। इंतजार किस बात के लिए वेस्ली? हमें सैम की मदद करनी होगी। कैथरीन, रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। हम यहाँ से नहीं निकल सकते। गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ 10-20 मील दूर तक कोई भी नहीं है हमारी मदद के लिए। इसलिए चुप रहो। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। तुमने उस आदमी की बात सुनी ना? दरवाजे इलेक्ट्रिफाइड हैं। हाथ लगाया तो जलकर राख हो जाओगे। तो इसका मतलब हम कुछ भी ना करें, है ना? बस कोई नहीं मरेगा, चुप हो जाओ। मैं इस केज में नहीं रहूंगा। या तो बचो या बचते हुए मर जाओ। देखो, वो हमारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है? हमें बहस बंद करके ये सोचना चाहिए कि यहाँ से कैसे निकले, समझे? भाड़ में जाओ। हमें यहाँ मत छोड़ो। वापस आओ, हमारी मदद
बेथनी, मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूं, जागते हुए, सोते हुए, सपनों में भी बस तुम्हारी ही याद आती है। एक दिन मैं बहुत जल्दी जग गया बेथ, तब तुम्हारा ही सपना देख रहा था। अब तुम्हारी ये यादें सह नहीं पाता हूं। मैंने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे। तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं टूट चुका हूं। मैं और सैमी, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। हत्या और दर्द मुझे दूर खींचते हैं उस हर प्यारी चीज से वो हम करते थे। मुझे वो सारी यादें पीछे छोड़नी होगी बेथनी, फिर से शुरुआत करनी होगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। बस अब वापस चली जाओ। बहुत बुरा वक्त है मेरा। मॉम, मॉम, क्या हुआ? वेस्ली कहाँ है? उन लोगों ने उन्हें जाने दिया। कहाँ लेकर गए वो? क्या करने वाले हैं उसके साथ? कहाँ गए वो? वेस्ली नहीं है वो मॉम, आपको समझ नहीं आया? उन्होंने उन्हें जाने दिया। मुझे तो लगता है उन्होंने ये सब किया है। जो भी देखो मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर वो कहाँ है मॉम? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम गलत सोच रहे हो। पर क्यों नहीं? उनका ही आइडिया था ना हमें यहाँ पर लाने का। हमारे पास फोन ना रहे ताकि हम किसी को कांटेक्ट ना कर सके। वो सिर्फ शांति चाहता था टोबी। वो चाहते थे कि हम किसी को कांटेक्ट ना कर सके। मेरा विश्वास कीजिए, उन्होंने कोई डील की है। देखो टोबी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त हम सब बहुत डरे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर इस तरह से इल्जाम लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ से बाहर जाते समय खुश थे। बस करो। ये समझ में आता है मॉम। आप एक बार टॉबी की बात तो सुनो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम लोग ऐसा कह रहे हो, और अगर तुम लोग जो कह रहे हो वह सही है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसे जितना जानती हूँ तुम लोग नहीं जानते। हम दोनों ने एक साथ कितना अच्छा वक्त बिताया है, जानते हो? मेरा कितना ख्याल रखता है वो, और जब भी मैं दुखी होती मुझे अपने कंधों का सहारा दिया करता था वो। उसकी वो मुस्कुराहट, जिस तरह से मुझे देखा करता था, मेरे हाथ अपने हाथों में लिया करता था। उसने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं किया, हमें छोड़कर चले गए।
यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। तो उसके बारे में मैं ये सब कैसे सुन सकती हूँ बताओ? तो अब वो कहाँ है मॉम? वो जहाँ भी हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। बस यही कामना करती हूँ मैं। तुम्हें फिर से मिलके अच्छा लगा मिस्टर वॉलिस। मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, समझे कि नहीं? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने नमक की गोली चलाई मुझ पर। तुम पागल हो। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम एक बदसूरत इंसान हो। नहीं नहीं मिस्टर वॉलिस, ये काफी नहीं है। अब तुम कौन हो और कहां से आए हो? यदि आप शांत रहना चाहते हैं तो अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि मैं रेवरेट हॉक्सवर्थ हूं और मेरे पास आपका भुगतान है। मेरी डील मीट ईटर के साथ थी, कहां है वो? मीट ईटर हैंसन फॉर्म पर पैर नहीं रखता है किसी भी परिस्थिति में, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर आपसे सौदा करने के लिए भेजा है, आपसे लेन देन की बात करने के लिए। तुम आखिर वास्तव में हो कौन? मैं एक वफादार और समर्पित ग्राहक हूँ। यूँ समझ लो कि एक नए बैच पर पहले ऑर्डर के साथ जिसका भुगतान हम हमेशा आपको करते हैं। तो मीट ईटर को बता दो कि डील सिर्फ बच्चों को फार्म तक लाने की थी, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना था, मारपीट नहीं करनी थी, जानवरों जैसा बर्ताव किया। ये देखो मेरे साथ क्या किया है, मुझ पर भी गोली चलाई, यहाँ तक कि मेरी पीठ भी जला दी उसने। मैं आपकी शिकायत को आगे बढ़ा दूंगा। मुझे दुगना पैसा चाहिए, जितना उसने कहा था उससे दुगना। वो बहुत गरीब है, जो अपनी खराई पर चलता है उससे अच्छा है। मैं जानता हूं कि वो कुटिल है, लेकिन फिर भी वो बहुत अमीर है। ये जो बाइबल है वो मिस्टर वॉलिस की है। मुझे ये सब ज्ञान की बातें मत बताओ, समझ गए कि नहीं? पागल कहीं के। मीट ईटर का मानना है कि डील तो डील होती है, समझे कि नहीं? हाँ, वैसे वो पसीने से लथपथ करी खाने वाले चिकने चेहरे वाले पाकी बड़ी नाक वाले बंदर नहीं है। मैं जो लेकर आया हूँ वो एक बहुत ही अच्छा परिवार है। जो मैं लेकर आया हूँ उसकी तुलना तुम अपने गंदे खाने से करते हो। मेरे सिवा तुम्हें ये कोई भी लाकर नहीं दे सकता है। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मुझे पता है, मुझे पैसा मिल जाएगा, एक एक पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो अभी चाहिए ताकि मैं इस जगह से निकल सकूं। ओह, बहुत बढ़िया। शायद तुम ठीक कह रहे थे रेवरेंड। शायद मुझे बार बार बाइबल पढ़नी चाहिए। अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। हवाई की खूबसूरत धूप में बीच के किनारे बैठकर पीना कोलाडा की चुस्की लेनी चाहिए। रेवरेंड, तुम भाड़ में जाओ, मीट को एंजॉय करो। सब के सब पागल हैं। मुझे जाने दो सन की कहीं के, तुम्हारा सिर काट दूंगा। तुम्हारे लिए एक डील है बेवकूफ कहीं के। मेरे पास एक डील है, मुझे यहां से बाहर निकालो। जाने दो मुझे अपना पैसा चाहिए। वो मेरा पैसा है, मुझे मेरा पैसा दो। कहती, सुनो, तुम्हें पता है जब तुम उन लोगों के साथ हो जिन्हें तुम प्यार करती हो, वो लोग तुम्हें इतना पागल करते हैं।
फिर भी तुम उनका बुरा नहीं चाहती और फिर भी तुम उनकी परवाह करती हो। मैं क्या तुम्हें परेशान कर रहा हूं? तुम इसी लायक हो, हैं? लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूर होते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि ये वो एहसास है कि तुम उनसे प्यार करती हो। मैंने अपनी बहन के साथ क्या किया? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझ पर चिल्लाती थी, बहस करती थी, और मैं हमेशा कहता कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और मैं चाहता था कि वो मर जाए। लेकिन जैसे ही कुछ बुरा होता उसी वक्त डैड एक तर्क देते, ये बहुत बदनसीब है, इसके साथ यही होना था। वो उसकी बहुत परवाह करते थे। तुम भी परवाह करती हो, बहुत चिंता करती हो। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये भावना क्यों आ रही है, क्योंकि वास्तव में तुम अपने परिवार की परवाह करती हो। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें भी यहाँ हमारे जैसी मौत मरना होगा। तुमने आज मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को भी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ से बचना नामुमकिन लग रहा है। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे इस धोखे की वजह से मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ। तुमने ये जो पाप किया है उसके लिए तुम्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। कैथरीन, प्लीज। और अगर मैं कभी भी इस पिंजरे से बाहर निकल पाई वेस्ली, तो कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें अपने इन हाथों से मार डालूंगी। तुम समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? मैंने तुम्हें एक अच्छी मौत देने की कोशिश की। यहां आने से पहले मैंने अपने टेंट को पेट्रोल से भिगा दिया था। कुछ ही मिनटों में वो जलकर खाक हो जाता। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया है वेस्ली? तुम घटिया और बेहुदा इंसान हो, बहुत ही घटिया। मैं समझता हूं। मैंने तुम्हारा मांस उस किसान को बेच दिया, हैंसन को और उसके कस्टमर्स को। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए तुम्हें यहां लाने के लिए, और अब वो तुम्हारी बोटी बोटी करके तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये तुम्हारे बेहुदा बच्चे। ये बात भी मत भूलना कि हमारे बाद तुम्हारा नंबर भी जरूर आएगा, समझे? नहीं, रुको, रुको। टॉबी, नहीं, 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 टॉबी, नहीं। टॉबी, बस यही एक मौका हो सकता है। तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। यहाँ फंसने से तो बेहतर है ना ये। नहीं टॉबी, टॉबी नहीं। नहीं टॉबी, नहीं।
सैमी! ठीक है। चलो चलो। अच्छे से सुना मेरे बेटे, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। हम इस नर्क से बाहर चले जाएंगे। तुम और मैं एक नई शुरुआत करेंगे। हमारे पास तुम्हारी माँ का आशीर्वाद होगा। कल हम हैंसन फार्म से निकलेंगे। अब सो जाओ मेरे बेटे। मॉम, आपके पास कटोरा है ना? क्या? कटोरा कटोरा मॉम। हाँ है। ठीक है, मेरी बात सुनो। हमें उसका खून चाहिए। हाँ? जेस, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जेस, जेस, नहीं। जेस, आप ऐसा कर सकती हैं। बस इतना ही। Ready? 3. बढ़िया। Come on, अंदर आ जाओ। Trust me, Mom.
जस्ट चाबियां लो, चाबियां लो। जल्दी करो, जल्दी, तुम्हें जल्दी करना होगा। जल्दी जल्दी उसकी बॉडी को छुपा दो। सैमी, तुम्हें जल्दी करना होगा जेस। सैमी, जल्दी करो जेस। मॉम चलो, मैं इसको कट करने वाली हूँ। रेडी? रेडी? कम ऑन। ये स्टार्ट नहीं हो रहा। सैमी, खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। सैमी, चुप जाओ, चुप जाओ जेस। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जेस। वो लड़की कहाँ है? लड़का कहाँ है? वो शैतान मेरे बच्चों को ले गया। सैमी उन्हें ले गया? क्या तुम्हें पता है कुछ? कैसे पता चलेगा? वो भाग भी सकते हैं। कैसे पता चलेगा? वो कहीं छुप भी सकते हैं। कैसे पता चलेगा मुझे? वो बदमाश, मैं उसे मार डालूंगा। इन्हें बाहर ले जाओ ट्रक में। मुझे अपने लड़के को ढूंढना है। जो कहा है उसे ध्यान से करना। ये मत समझना कि मैं हार चुका हूं। सैमी, तुम बहुत बदमाश हो। मैंने तुमसे क्या कहा था?
तुम्हारा वो कमबख्त बेटा कहाँ है? हाँ? वो चले गए। बताओ कहाँ है? उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे उस मंदबुद्धि बेटे को पछाड़ दिया। उसने मेरे बेटे को मार डाला है। उसने उसकी हत्या की है। मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। और मौका मिलने पर वो तुम्हें भी मार देंगे। समझ गए तुम? सही कह रही हो। मैं बहुत समय से ये सब कर रहा हूँ। छोटा सैमी, पूरी दुनिया उसे बहुत सताती थी और उन्हीं की वजह से वो भी शैतान बन गया। कुछ समझने से पहले ही शैतान बन गया। लेकिन यही उसकी सजा है कि वो अपने बेड पर ऐसे ही पड़ा रहे। और यही उसकी सजा भी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। हमें जाने दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। पर तुमने इस जगह को नर्क से भी बदतर बना दिया है। 10 साल पहले मिस हार्वर, शायद मैं आपको जाने देता, लेकिन इतने सालों बाद मैंने आज प्लान किया था इस जगह को छोड़ने का। मैं अपने बेटे के साथ नई शुरुआत करना चाहता था और तुम्हारा परिवार इसके लिए एक जरिया था। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको कितना दर्द दिया है। इतने सालों से मैंने भी वो दर्द सहा है, बार बार सहा है। और अब मैं ये जानता हूँ कि मैं मर जाऊंगा अगर मैंने ये पिंजरा खोल दिया। इस खेत से बच के निकला है ऐसा एक ही भाग्यशाली व्यक्ति है, एवरेट ब्लैक हार्ट। बेटी बेबी, बेटी बूबू, देखो कौन आया है। क्या तुम्हें भूख लगी है बेटी? तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, तुम्हारे पति की है, तुम्हारे लड़के की है। मुझे पता है तुम्हारे पास जवाब नहीं है, लेकिन अब उन्होंने जो किया उसकी कीमत तुम चुकाओगी, वही उचित होगा। लेकिन ये सिर्फ जीवन है बेटी। जीवन ने तुम्हें एक बदसूरत होंग बना दिया है। उसी तरह जिंदगी ने मेरी बेदनी को इतना खूबसूरत बनाया था, लेकिन फिर छीन लिया उसे, मुझसे छीन लिया उसे इस जिंदगी ने। तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास, यहाँ आगे बढ़ो, ले लो ना ले लो, खाओ इसे मेरी प्यारी बेटी। अब मैंने इस बेटी के बारे में सोचा है। लड़कों,
मैं कैसे बच सकता हूँ? कभी कभी हम प्यार में जो करते हैं वो एक दर्दनाक बलिदान होता है, लेकिन अस्तित्व की कठिन विश्वासघाती यात्रा मेरी बात सुनो, तुम्हें तुम्हारे पैर काटने होंगे और चाबी ढूंढनी होगी। बस एक ही रास्ता बचा है। मैंने सोचा था कि प्यार, लेकिन मैं पहले से ही याद कर रहा हूँ पैर की उंगली को, और मैं इस कमजोरी से और मांस नहीं बचा सकता हूँ। मेरा शरीर बहुत ही कमजोर है। कई बार सर्वसम्मत समाधान नहीं निकलता है, लेकिन वो आदमी रक्त की एक बूंद नहीं ले पाएगा। बिल्कुल नहीं। हमारे लड़कों को बचाना होगा। ये परेशान करने वाले जानवर मेरे बेटे नहीं हैं। हमारी मदद करो। प्लीज मेरे परिवार को चोट मत पहुंचाओ। उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला है हार्वर। अब मुझे उसका बदला लेना होगा। मेरे बेटे सैम को अकेला छोड़ दो। वो अब आपका सैम नहीं है। उसे जाने दो, प्लीज उसे जाने दो। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओह, ये क्या हुआ? मेरी फैमिली की। सुनो, एम्बुलेंस को कॉल करो। बहुत बुरा हुआ। एक्सीडेंट हुआ है क्या? मुझे नहीं पता। वहाँ पर खेत में लोगों को मारते हैं वो लोग। आपको पुलिस को फोन करना चाहिए। हम करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चाल चलना पसंद है, बस इतना ही। ये कोई चाल नहीं है, वो मॉन्स्टर्स मैं है। तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। शांत हो जाओ। आ जाओ, बैठो और शांत रहो।
ये लो, ये पी लो। मुझे प्यास नहीं लगी। देखो तुम्हें ये पीना चाहिए। बाथरूम जाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें नहाने के लिए ले चलती हूँ। चलो। टॉवल वहां पर है, व्हाइट वाला यूज मत करना। नहा के नीचे आ जाना, हम लोग वहीं पे हैं। हिलना मत, वरना मैं इसको काट के रख दूंगी। जैसा कह रहे वैसा करो। तो तुमने पुलिस को फोन नहीं किया है ना? मेरी बीवी को छोड़ो अभी इसी वक्त। किससे फोन किया था? इसे सब कुछ बता दो, ये वैसे भी मरने वाली है। हमारे पास बहुत ही खास स्वाद है, एक बहुत ही खास व्यंजन के लिए। सप्लायर मीट ईटर के नाम से जाना जाता है। हमें हिदायत दी गई थी कि आपात स्थिति में उसे बुलाएं, इसीलिए बुलाया है। द मीट ईटर, वो यहाँ आ रहा है। वो रास्ते में है। बुलाओ उसे, कहो कि दरवाजा खोले और खुद को अंदर जाने दे। वो हम सबको मार डालेगा। मैं उसे चीर डालूंगी। वो जो कह रही है वो करो, कॉल करो अभी। मॉम, हे भगवान। ओह नहीं, ओह नहीं, टोबी तुम वहाँ कैसे? ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मदद करो मॉम, हमें बाहर निकालिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती टोबी। प्लीज मॉम, अगर मैं दरवाजा खोल पाती और कह पाती कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती टोबी, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मॉम, प्लीज, प्लीज मॉम, बाहर निकालिए मॉम, प्लीज मॉम, प्लीज मॉम, बाहर निकालिए प्लीज। कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हूँ बेटा, मैं नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, मुझे माफ कर दो। तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बचा लो हमें।
मुझे माफ कर दो टोबी, माफ कर दो। हिलना मत। तो तुम वही हो ना जो ब्लाइंड आइड बिल से बच गए? अंधी आंखों वाला मूर्ख। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसने ब्लाइंड आइड बिल की ब्लाइंड आई को अंधा कर दिया। तो तुम हो मीट ईटर। हाँ। मेरी फैमिली के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। लेकिन मेरा असली नाम एवरेट ब्लैक हार्ट है। अपनी कार की चाबियां निकालो और टेबल पर रख दो। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और ऐसा कैसे? तुमने मेरी फैमिली को चुन लिया। जेस, जेस जल्दी करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो जेस। Toby, God. Oh, Dad. नहीं, मैं नहीं कर पा रही, नहीं। मदद करो, इसे उतारो।
नहीं जेस, तुमने उसे मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सैम को ढूंढना है। तुम्हें अपने भाई को गोली मारने की जरूरत नहीं थी। वो टोबी नहीं था। एवरेट ब्लैक हार्ट, तुम घटिया कायर हो। वो क्या कर रहा है मेरे फार्म पर? तुम्हारा मतलब उसका खेत। ये क्या है? ये मीट ईटर है। मैं हमेशा इस व्यवसाय को तुमसे बेहतर जानता था हैंसन। इन क्रूर वर्षों में मैंने तुम्हें एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह कठपुतली बनाया है और प्रतिशोध का स्वाद मेरी आशा से कई अधिक मीठा है। तुम्हारे राक्षस द्वारा पशुओं के उकेरे गए मांस से भी अधिक मीठा एक बेटे का मांस। मेरा बेटा मर चुका है। अच्छा है, वो अपनी माँ के साथ सड़ सकता है नरक के बदबूदार गड्ढे में। कम से कम उनके पास एक वफादार पति और प्यार करने वाला पिता था। बेटी ब्लैक हार्ट के पति के जैसा कायर तो नहीं था। मैंने तुम्हें अपने बेटों को मारते देखा है। मैं जंगल में छिप गया जबकि तुमने उनके शरीरों को दफनाया था। हम छोटे से क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कब तुम अपनी बंदूक छोड़ोगे, लेकिन वो क्षण कभी नहीं आया। मैंने बेटी को कभी नहीं मारा। उसके पैर उसके शरीर से अलग हो गए थे। वो तुम्हारी वजह से। कमीने, गद्दार। उबाल आने पर मुझे बताना। फिर भी तुमने उसका मांस बेच दिया। वो एक भयानक प्रतिशोध था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही दुख और घृणा भरी हुई थी। पर तुम्हारे लड़के वो बहुत ही क्रूर और घटिया थे, क्योंकि वो जिंदा थे। नहीं, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो हैंसन। मैंने उनके शरीरों को दफनाते देखा था। तुमने ही ये घटिया साजिश रची थी जिसमें तुम ही फंस गए और तुम्हारे लड़के यहाँ जीवित है। जीवित, आज तक जीवित है। मुझे मेरे बेटों के पास ले चलो। मेरे बेटों के पास ले चलो। मुझे पूरा नाम चाहिए, सारी जानकारी। लिखना शुरू करो। तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया। मुझे सभी ग्राहकों के नाम चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये बहुत फनी है? हैंसन बूढ़ा गूंगा हो सकता है। तुम दोबारा नहीं हंसोगे। मुझे सारी जानकारी चाहिए, सारे नाम, सारे डिटेल्स, सब कुछ। तुम्हारा बिजनेस अब खत्म हो गया। मेरे बेटों के पास ले चलो, फिर नाम बताऊंगा। कसम खा रहा हूं मैं। मुझे नाम बता दो, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगी जहां भी जाना है।
Caleb, Joe. ओह सैम, ओह सैम, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? आपको चोट लगी है? घबराओ मत, मैं ठीक हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ तुम ठीक हो ना? मॉम, हमें निकलना चाहिए। तुम ये कार लो और चली जाओ यहाँ से, जब तक कि कोई तुम्हें अच्छा इंसान ना मिल जाए, और वो आपको आगे ले जाएंगे। जेस, आपको सीधा अस्पताल जाने की जरूरत है। और तुम्हारा क्या होगा? मैं इसे खत्म करूंगी। सब खत्म हो गया है जेसिका, चलो घर चलते हैं, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। घर चलो? कब, जबकि कुछ बचा ही नहीं है मॉम। हाँ, सिर्फ मैं और सैम ही बचे हैं। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कोई खेत छोड़ने के लिए नहीं बचेगा। अपना ख्याल रखना। वादा करो तुम वापस आओगी, तुम हमें ढूंढोगी और हमारे पास वापस जरूर आओगी। वादा करो, हम तुम्हारा परिवार है, हमें इस तरह से दूर मत करो। I'm sorry। चलो सैम, चलो सैम, हमें यहाँ से चलना होगा। उसका ख्याल रखना। हैंसन फार्म में आपका स्वागत है। हैंसन फार्म को ध्यान में रखते हुए आप कैदियों को नहीं खिलाया जाएगा। मैं मानव मांस के लिए आपकी भूख को अच्छी तरह से जानती हूँ। आप सब आपके पास जो मांस है उसके लिए भुगतान करेंगे। यही आपकी सजा है। जब आपका दिमाग खराब हुआ था और आपने इंसानों को तकलीफ दी थी, मुझे आशा है कि आपकी भी फैमिली होगी जिन्हें आप याद करते होंगे। वो आपका शोक मनाएंगे और बच्चे जो जानते होंगे इच्छाओं के बारे में। जो पहले खाता है वही जिंदा रहता है। वो लालची सुअर मुक्त हो जाएगा। आप में से बाकी लोग नरभक्षण के लिए पीड़ित होंगे, जिसने मेरी जिंदगी का विनाश कर दिया, और भी बहुत कुछ। और तुम भी हंट। मैं चाहती हूँ कि तुम ओवन में चढ़ जाओ और दरवाजा बंद करो। मैं एक गंदे जानवर की तरह गोली नहीं मारना चाहती तुम्हें। बदला बहुत ही भयानक होता है। ये बदला नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि और कोई तुम्हारे जैसा ना हो। मैं बस इसे अपने तरीके से कर रही हूँ।
this movie is encoded by Dr. Star.